Hello everyone, this is Priyanka Kalaskar and you are watching Satya Shruta Mantra channel. Today we are going to start exercise 2.2 of polynomial lesson. In previous videos we have seen introduction of polynomial and exercise 2.1. If you haven't seen my previous video, you can go in playlist and you can search. So without wasting our time, we will start exercise 2.2. See what they say. First question. Find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relation between zeros and coefficient. So we have to verify the relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. But first we have to find zero of quadratic polynomial. So how many zeros we have in quadratic polynomial, that you should know. So question we will start, but before we will find the relation between zeros and coefficient. So first we will see relation. So what is the standard form of quadratic polynomial? Standard form of quadratic polynomial is nothing but ax square plus bx plus c. This is the standard form of quadratic polynomial. Now we have to find zeros. So how we will find zeros of this quadratic polynomial? First we should equate this quadratic polynomial into 0. We should write first quadratic polynomial into equation. So equation we have to write. See, इक्वेशन में लिखना मतलब क्या है, उसको सिर्फ इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन. नाउ हाउ मेनी zeros वी हैव दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये कैसे चेकआउट करेंगे? तो आपकी वेरिएबल को जितने पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है आपका 2 है, मतलब आपको zeros कितने मिलेंगे यहाँ पर? 2 ही zeros मिलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 ही होगा, तभी हम उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे. मतलब आपको हर बार कितने जीरो मिलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए? बस 2 ही zeros मिलेंगे. सेज अल्फा एंड बीटा. Consider it is an alpha and beta. Now these zeros we have taken out, but now they are saying find the relation between zeros and coefficient. So what is the coefficient here? So coefficient is nothing but the multiplicand of variable. मतलब आपके जो भी वेरिएबल है यहाँ पर उनका मल्टीप्लिकेंड ही आपका क्या है? कोएफिशिएंट है. यहाँ तो बस एक ही वेरिएबल x, बट पावर डिफरेंट है. यहाँ इसका पावर 2 है, यहाँ इसका पावर 1 है, मतलब आपको दो कोएफिशिएंट मिल रहा है. ठीक है, हम उसको लिख लेते हैं पहले. तो एक क्या है आपका? कोएफिशिएंट ऑफ x square. व्हाट अबाउट b? कोएफिशिएंट ऑफ x. May I say c is a coefficient? C is not a coefficient, it's a constant. So we write c is a constant. Okay. So now we write the relation between zeros and coefficient. देखिए अभी रिलेशन देखने के लिए आपको बस दो ही प्रॉपर्टीज का पता होना जरूरी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम कहेंगे सम ऑफ zeros. सम ऑफ zeros इसको कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल. अभी ये वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट के टर्म में कैसे लिखेंगे? इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट के टर्म में होती है -b/a. इसे हम फार्मूला भी कहेंगे कि सम ऑफ द zeros का फार्मूला क्या है? -b/a, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अब दूसरी प्रॉपर्टी आपको कौन सी याद रखनी है? दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है प्रोडक्ट ऑफ zeros. तो प्रोडक्ट ऑफ zeros को कैसे लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा इक्वल. अभी ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो हम उसे डिफाइन करेंगे c/a मींस कांस्टेंट y कोएफिशिएंट ऑफ x square. Now we will see the equation. शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, x square minus 2x minus 8. Now we have to find its zero and then relation. So first we will write this question. Now we will write this quadratic polynomial into equation. So equal to 0 we will put. Now see, here students are splitting the middle term and they are finding the zeros. But after that they are forgetting to write the value of ABC. ABC क्या है? AB क्या है? कोएफिशिएंट. C क्या है? कांस्टेंट. पहले आप उसकी वैल्यू लिख लो, क्योंकि वो तो दी है, वो आप लिख सकते हो. तो हम लिख लेंगे A की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1. B की वैल्यू क्या है? -2. C की वैल्यू क्या है यहाँ? -8. चलिए अभी zeros फाइंड आउट करते हैं फास्ट. तो zeros कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे. देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या है? जो आपका फर्स्ट टर्म है उसमें जो भी आपका नंबर है, देखिए ये नंबर और लास्ट वाला नंबर, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मैं यहाँ रफ में लिखती हूँ कि हम कैसे करेंगे ये. फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, सो 1 इंटू -8, आई एम गेटिंग -8. अभी मुझे -8 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे -8 मिले
और उनको ऐड करने के बाद मुझे मिडिल टर्म मिले। मिडिल टर्म क्या है आपकी -2, वो मिले। तो कैसे फाइंड आउट करना है, मुझे 2 ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे -8 मिले और उनको ऐड करने के बाद मुझे मिडिल टर्म -2 मिले। ओके, अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके फैक्टर से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। 4 2 जा ओके, बट अभी माइनस साइन किसे दे, अभी माइनस साइन किसे दे, क्योंकि -8 है। अभी 4 को माइनस साइन दे कि 2 को माइनस साइन दे, आप बस ये नंबर यहाँ लिखो, फिर आपको पता चलेगा। देखो अभी 4 + 2 किया, मैंने 4 + 2 किया तो मुझे 6 मिलेगा, बट आंसर तो वहाँ -2 है। मतलब किसे माइनस साइन देंगे, बिग नंबर को, मीन्स 4 को माइनस साइन देंगे, तभी तो मुझे -2 मिलेगा। तो अभी आपके फैक्टर्स क्या हो गए, -4 + 2, वो बस हमें यहाँ लिखना है। अगर हम मिडिल टर्म में लिखेंगे, उसके जो भी फैक्टर्स हमने उसको जो भी स्प्लिट किया है वो नंबर लिखेंगे। मीन्स क्या लिखेंगे अभी, x² - 4x + 2x - 8 = 0। अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर मैंने इन दोनों को चेक किया तो यहाँ से मैं x कॉमन निकाल सकती हूँ, तो x को कॉमन निकालेंगे, x - 4 प्लस, अभी यहाँ पर क्या कॉमन निकालना है मुझे, देखिए अभी यहाँ पर आपको वही नंबर कॉमन निकालना है कि वो कॉमन निकालने के बाद मुझे ये ब्रैकेट में, तो पहले आप ये ब्रैकेट यहाँ पर लिख लो, x - 4 = 0। अभी इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है कि ये पूरे के पूरे 2 टर्म्स मिले, देखिए इसको क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 से, मतलब 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 × x 2x माइनस 2 4 2 जा 8। ओके, अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी इन 2 नंबर को एक ब्रैकेट में लिखना है, मीन्स x + 2, सेकेंड ब्रैकेट क्या होंगे आपकी, x - 4 = 0। ओके, अभी इन दोनों को ही हम क्या करेंगे, 0 के साथ कंपेयर करके, कि मुझे a × b = 0 मिल रहा है, जैसे a × b = 0 मतलब a = 0, b = 0, तो फिर x + 2 = 0 मिलेगा मुझे, और x - 4 = 0। यहाँ पर आपको x के 2 वैल्यूज मिलेंगी, देखो अभी x = -2, x = 4। तो हम ये फर्स्ट रूट है, तो हम इसको अल्फा कहेंगे, आप इसको बीटा भी कह सकते हो, डजंट मैटर, और इसको कहेंगे हम बीटा। ये तो मैंने रूट फाइंड आउट कर लिए, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशन। अभी रिलेशन भी देख लेते हैं। देखिए आपका रिलेशन क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, अल्फा + बीटा = -b/a। चलिए पुट करिए फास्ट। अभी आपका अल्फा क्या है, -2 + बीटा क्या है आपका 4 इक्वल b क्या है अभी आपका -2, और यहाँ ऑलरेडी एक माइनस साइन है, मतलब -2 होगा, -2 अपॉन a क्या है आपका 1, -2 + 4 2 इक्वल -, बिकम प्लस। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ट्रू हो गई। अब इसे वैसे हम चेक करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, मींस b चेक करेंगे। अभी आपका सेकंड क्या था, अल्फा × बीटा = c/a। व्हाट इज योर अल्फा, -2 इनटू व्हाट इज योर बीटा 4 इक्वल c क्या है आपका -8, सो -8/1, 2 4 जा अगेन -8 इक्वल -8। ठीक है, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी पे आपकी क्या हो गई, ट्रू। रिलेशन इज फॉलोइंग। Now we will see the next question. Now equation 2 I am giving homework to you. We will see question number 3. Number 3 देखते हैं। What is the question number 3? 6x² - 3 - 7x। देखिए अभी टर्म सिर्फ इधर उधर लिखे, कांस्टेंट बीच में लिखा है, हम उसको रीअरेंज करेंगे। So 6x² - 7x - 3 = 0। सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे हम यहाँ। अभी फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, बट फर्स्ट एबीसी फाइंड आउट लिख लेते फास्ट। a = 6, b = -7, c = -3। अभी कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे हम, 6 × -3 -18। अभी मुझे -18 के फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे फैक्टर्स निकालने हैं, क्योंकि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो -18 मिले और उन फैक्टर्स का सम क्या हो, मिडिल टर्म। मींस मिडिल टर्म क्या है आपकी, -7 मिले। ये बहुत इजी है, 9 × 18, सो 9 × 18। अभी माइनस साइन किसे देनी है मुझे, देखिए ये नंबर आप लिख लीजिए तो यहाँ पर। अभी माइनस साइन किसे देनी है, देखिए अगर मैंने 9 को माइनस साइन नहीं दी, 2 को माइनस साइन दी, तो ये 7 पॉजिटिव होगा, तो बिग नंबर के साइन चाहिए, मतलब माइनस साइन किसे देनी है मुझे, बिग नंबर 9 को। यहाँ भी आ जाएगा -9, मतलब -9 + 2 यहाँ के फैक्टर्स हो गए, वो भी आपको यहाँ लिखना है। सो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। फिर से क्या करेंगे, अभी ब्रैकेट फॉर्म करनी है मुझे। अभी यहाँ पर मैं क्या कॉमन निकाल सकते हैं, अभी देखिए यहाँ पे 6x
स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस 9x, मतलब 3x हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3x कॉमन निकाल लेंगे। फिर 3x को कॉमन निकाला, क्या मिलेगा? 3 2 6 माइनस 3। करिए वेरीफाई। 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर माइनस 9x। अभी फिर से यहाँ क्या निकालना है मुझे पता नहीं, तो आप ब्रैकेट पहले लिख लो। यहाँ पे 2x माइनस 3 एज इट इज ब्रैकेट लिख, डोंट वरी, ब्रैकेट लिख लो। मुझे ये ब्रैकेट मिलनी चाहिए कॉमन निकालने के बाद। अभी 2x माइनस 3 है तो एज इट इज आ गया, मतलब यहाँ क्या है आपका +1। +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही तो एज इट इज वो मिलेगा ना। -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो प्लस नहीं है तो माइनस है, तो +1 निकाल मल्टीप्लाई करके देखो। अभी 2x इंटू 1 2x, -3 इंटू 1 -3। अभी ब्रैकेट में सिर्फ लिखना है मुझे 3x + 1 2x - 3 = 0। फिर से एक ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 होगा। 2x - 3 = 0। What is your value of alpha? I will write now direct. Alpha is equals to -1/3. Here beta equal 3/2 because of -3 आ जाएगा तो +3 होगा। ये +1 है, उधर जाएगा तो मिस राइट हैंड में जाएगा तो -1 होगा। ओके, this you get two values, -1/3 and 3/2. Now we have to find relation. So अभी relation कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट रिलेशन क्या था आपका? सम ऑफ मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a. व्हाट इज माय अल्फा? -1/3 -1/3 plus 3/2 equal. What is your b? My b is -7. There is already minus sign exists, so minus of -7 by what is your a? 6. This is the addition of fraction. How will do addition of fraction? By LCM also, otherwise by simple cross. Now this is only LCM method we can do, otherwise by cross multiplication. So I will do cross multiplication. -2 plus -2 into -2, this is a 9. 3 2 6 equals minus of minus will become plus 7/6. Again -2 plus 9, 7/6 equals 7/6. Now we will check second b. What is our b? Alpha into beta. So now alpha into beta is there possible? So we will manage alpha into beta equals c/a. So now this is our of work. We can negate it also, no problem. So now alpha into beta -1/3 into 3/2 equals what is your c? -3/6. This is simple multiplication of fraction. Now numerator with numerator and denominator with denominator. So -1 into 3 -3/6 equals -3/6. This is fraction, so we have to write this in this form. So -1/2 equals -1/2. Second property is also true. Now we will check next question. See now this question 4u square plus 8u. Again we will write first here equation 8u. अभी c यहाँ पर नहीं है, आप +0 करके लिख सकते हैं। फर्स्ट abc फाइंड आउट कर लेते हैं फास्ट। a4 b is equals to 8, c a name is 0. Now zeros is splitting the middle term. इसको splitting the middle term कैसे करेंगे अभी देखिए। पांच नंबर तो है नहीं, बट यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पर हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर हम? अगर मैंने यहाँ 4u अगर मैंने यहाँ कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा मुझे? u प्लस this 4u into u 4u square plus 2 4 2 8, वो तो ऑलरेडी एक ही u है यहाँ पर, तो हमने वो पहले बाहर निकाल दिया है इक्वल्स टू 0। अभी इसका मीनिंग क्या है? इन ब्रैकेट a plus b और either it means this is also 0, 4u equals to 0 and u plus 2 equal to 0. Now value of u becomes 0 because this will go in division, become 0. This is nothing but my first 0. Here u equals to -2. The second 0. This is the second 0. Is beta -2. This is very simple equation. Now we will find relation. So first relation alpha plus beta equal -b/a, where alpha is 0 plus beta is -2 in bracket. Now b is your minus, but here b is positive. So minus of 8 by a is 4 -2 equals 4 to the 8. So see first is also true. Now second alpha into beta equals c/a. Again alpha 0 into -2
simple calculation of 0 equal 0. Both properties are true. So next question I am giving homework to you. We will meet again. Exercise 2.2 is second question. Take care. Bye. See you.